خاندان کے خلاف ایونٹ فیلڈ ریفرنس کی سماعت میں آج JIT کے سربراہ واجد ضیاء پھر بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر نون لیگی کارکنوں اور رہنماؤں نے اپنے عقائد کا استقبال کیا۔ اسی خبر کے حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ اب تک ریحان دشتی سے۔ جی ریحان۔ جی، احتساب عدالت میں آج سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر اس وقت احتساب عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ احتساب عدالت میں آج شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ پراپرٹی ریفرنس کیس کی سماعت ہوگی اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سماعت کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر اس وقت احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، کمرہ عدالت میں اس وقت موجود ہیں۔ پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء جو آج عدالت میں پیش ہو کے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ یاد رہے کہ واجد ضیاء کا پچھلے 3 سماعت میں بیان جاری ہے اور نامکمل بیان آج واجد ضیاء ریکارڈ کرائیں گے اور واجد ضیاء کو آج عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس سے متعلق دستاویزات پیش کریں گے اور واجد ضیاء JIT کے جو صدر اور رپورٹ ان کے پاس ہے وہ آج احتساب عدالت میں جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کریں گے۔ عدالت میں واجد ضیاء کو ریکارڈ ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی بھی پچھلے سماعت میں ہدایت کر دی تھی اور پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء کا بیان پچھلے 3 سماعتوں سے جاری ہے۔ واجد ضیاء کا بیان آج مکمل ہونے پر مریم نواز کے جو وکیل امجد پرویز ان پہ جرا کریں گے۔ تو واجد ضیاء یاد رہے کہ جو مرکزی گواہ JIT کے سربراہ رہے ہیں اور واجد ضیاء نے 2 مہینے کی جو رپورٹ منتخب کی تھی JIT کی سربراہی میں 6 رکنی جو JIT بنی تھی، JIT کے سربراہ واجد ضیاء تھے اور اس کے بعد یہ رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا نیب کو اور احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے اور نیب کی جانب سے یہ ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کر دی گئی ہیں اور 8 ستمبر کو یہ ریفرنسز دائر کر دی گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرائل مکمل کی جائے، لیکن 6 مہینے میں یہ ٹرائل مکمل نہ ہو سکی تھی۔ تو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مزید وقت مانگ لیا اور سپریم کورٹ نے سزا منظور کرتے ہوئے مزید 2 مہینے کا وقت دیا ہے اور 8 مئی تک یہ کیسز کی جو ٹرائل ہے مکمل ہونی ہے اور فیصلہ جج محمد بشیر نے سنانے سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق۔ اس وقت یاد رہے کہ جتنے گواہان تھے وہ سارے گواہان اپنے بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ جو مرکزی گواہ ہے واجد ضیاء اپنا بیان اس وقت جاری رکھے ہیں۔ پچھلے 3 سماعتوں میں واجد ضیاء کا بیان جاری ہے اور واجد ضیاء کا بیان مکمل ہونے کے بعد جو مریم نواز کے وکیل ہیں امجد پرویز ان پہ جرا کریں گے اور اس کے بعد جو میاں محمد نواز شریف وکیل خواجہ عارف ان پہ جرا کریں گے۔ جی ریحان، یہ بتائیے گا اور کون کون سے رہنما مسلم لیگ نون کے احتساب عدالت آئے ہیں؟ جی، مسلم لیگ کے جو رہنمان ہیں احتساب عدالت عموماً میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت مریم اورنگزیب، مصدق ملک، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور طلال چودھری ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنمان ہیں میاں محمد نواز شریف کا یہاں استقبال کر کے میاں محمد نواز شریف کمرہ عدالت کی جانب روانہ ہو گئے اور جو مسلم لیگ نون کے جو دیگر کارکنان ہیں وہ بھی میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے عموماً احتساب عدالت پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے ان کو احتساب عدالت کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے اور خاردار تاریں لگا کر 1-2 کلومیٹر سے جو رستے ہیں سروس روڈیں بند کر دی گئی ہیں اور جو خاردار تاریں لگا کر بند کرنے کے بیک سائڈ پہ بالکل جو مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں جمع ہوتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا استقبال عموماً کرتے ہیں۔ آج بھی میاں محمد نواز شریف کا استقبال کارکنوں اور مسلم لیگ کے جو رہنمان MP MNA سینیٹر وزراء یہاں موجود تھے اور میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے بعد میاں محمد نواز شریف کمرہ عدالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف کمرہ عدالت میں موجود ہے اور کیس کی سماعت جج محمد بشیر کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ریحان دشتی ساتھ ہی موجود رہیے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں شریف خاندان کے خلاف ایونٹ فیلڈ ریفرنس کی سماعت میں آج JIT کے سربراہ واجد ضیاء پھر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ گزشتہ 3 سماعتوں سے واجد ضیاء اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں۔ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ جب مریم نواز اور نواز شریف احتساب عدالت آئے تو کارکنان نے بھرپور استقبال کیا۔ خصوصی طیارے کے ذریعے نواز شریف احتساب عدالت پہنچے تھے۔ کیس کی سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی اس وقت اپنے عقائد سے اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت میں ہی موجود ہیں۔ ریحان، یہ بتائیے گا کہ مزید آج اس کیس میں کیا پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ اگر آج واجد ضیاء کا بیان مکمل ہو جاتا ہے، مکمل بیان وہ قلم بند کروا دیتے ہیں تو پھر آگے کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟
जी बिल्कुल, अगर वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल हो, जो इस्तिगासा के दूसरे गवाहान के बयान मुकम्मल हो गए और इसके बाद जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे और तफ्तीशी ऑफिसर के बयान रिकॉर्ड होने के बाद यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो वकील सफाई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील हैं, वो अपने गवाह सफाई पेश करेंगे, वो अपने गवाहान ले आएंगे, एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। जब हमारी बात हुई थी तो ख्वाजा आरिस ने ये वाज़ेह नहीं कहा था कि बिल्कुल हम कितने गवाह पेश करें, लेकिन ख्वाजा आरिस की जानिब से भी ये कहा गया था कि हम अपने गवाहान भी एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। लेकिन यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो केस है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील सफाई हैं, जो वकील सफाई के जो गवाहान हैं वो भी पेश करेंगे। उसके बाद एहतसाब अदालत की केस की समाअत जारी रहेगी, क्योंकि जो रेफरेंसेस की जो वकील इस्तिगासा के जो गवाहान हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं। उसके बाद जो वाजिद ज़िया अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे, वाजिद ज़िया के बाद जो बयान रिकॉर्ड होने के बाद जो तफ्तीशी ऑफिसर अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे, जो इस्तिगासा के गवाह यहाँ से मुकम्मल होंगे। इससे यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो ख्वाजा हारिस अपने जो वकील सफाई हैं वो अपने गवाहान पेश करेंगे एहतसाब अदालत में, और इसके बाद जो देखा जाएगा कि कितने गवाहान पेश करेंगे और जज मोहम्मद बशीर केस को किस तरह चलाएंगे। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आगे शायद ये दिन ब दिन केस की समाअत हो, और क्योंकि 2 महीने मजीद दिए गए हैं और 2 महीने में ये समाअत मुकम्मल होनी है। और एहतसाब अदालत के जो ये 3 रेफरेंसेज हैं और मजीद बल्कि 4 रेफरेंसेज हैं, एक सागदार के खिलाफ और 3 शरीफ खानदान के खिलाफ, ये 6 महीने के अंदर मुकम्मल होने थे लेकिन मुकम्मल नहीं हो सके। मजीद 2 महीने दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 2 महीने तक ये केस की समाअत मुकम्मल होनी है, ये ट्रायल मुकम्मल होना है और फैसला 2 महीने के अंदर अंदर जज मोहम्मद बशीर ने अब फैसला करना है। और लेकिन ये देखा जाएगा कि कितने गवाहान जो वकील सफाई की जानिब से पेश किए जाते हैं। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब अदालत में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। जी ठीक है, ये बताइएगा रेहान कि इस केस की कितनी समातें हो चुकी हैं और नवाज शरीफ कितनी बार एहतसाब अदालत में इस केस में पेश हुए हैं? जी बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में 14 मार्च को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समन जारी 14 सितंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समन जारी कर दिए गए थे कि 19 सितंबर तक एहतसाब अदालत में पेश हो, लेकिन उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए थे, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपने अहलिया की बीमारी की वजह से वहाँ मौजूद थे। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश हुए और अब इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर समाअत में एहतसाब अदालत में पेश हो रहे हैं। अमूमन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश होते हैं। जो इस वक्त अगर बताते चले कि जो इस्तिगासा के गवाह थे, इस्तिगासा के जितने गवाहान थे उनमें से सारे गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस वक्त जो 56 गवाहान हैं अब इस्तिगासा के वो बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि जो तीनों रेफरेंसेस में जो मरकजी गवाह वाजिद ज़िया को तलब कर रखा है। एवन फील्ड के हवाले से आज तीसरी समाअत में वाजिद ज़िया का बयान इस वक्त आज भी जारी है, लेकिन जो एवन फील्ड और जो अल अजीज़िया और फ्लैगशिप में वो कल वाजिद ज़िया को भी तलब कर रखा है अपने बयान रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके बाद जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं और रह जाते हैं अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इस वक्त यही कहा जाता है कि केस आखिरी मरहले में दाखिल है। जो इस्तिगासा के गवाह हैं मुकम्मल हो रहे हैं, जो मरकजी गवाह वाजिद ज़िया अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। वाजिद ज़िया बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो तफ्तीशी ऑफिसर अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे और इस्तिगासा के जो गवाह हैं वो मुकम्मल होंगे। और इस वक्त केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर साहब अदालत में पेश हुए, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड उनके साथ मौजूद है और केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। जी ठीक है रेहान दश्ती, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत में आज JIT के सरबराह वाजिद ज़िया अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने अपने अकायद का भरपूर इस्तकबाल किया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से, और उनसे बात करते हैं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। आफ्ताब बताइएगा। जी आफ्ताब। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत हो रही है। ये रेफरेंस बुनियादी तौर पर लंदन फ्लैट्स के हवाले से बनाया गया था। इसमें हसन नवाज और हुसैन नवाज भी शरीक मुल्ज़म थे, ताहम उनको वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको अदालत ने इस केस से अलग कर दिया है। तो आज की समाअत में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आज तीसरा रोज होगा वाजिद ज़िया की तरफ से बयान रिकॉर्ड करवाने का, क्योंकि वाजिद ज़िया ने इन्वेस्टिगेशन की थी और JIT ने 62 रोज काम करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, तो इसलिए इतना तवील बयान होगा वाजिद ज़िया का कि इसमें मजीद
2 से 3 रोज दरकार होंगे, चूंकि गुज़श्ता समाअत पर भी वाजिद ज़िया का बयान जो था वो मुकम्मल ना हो सका। यूं ही वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल होगा तो उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस एडवोकेट और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज उन पर जिरा करेंगे और उस जिरा के बाद वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल होगा। वाजिद ज़िया के बयान के बाद नैब के तफ्तीशी अफसर इस केस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसके बाद एवन फील्ड रेफरेंस में इस्तगासा के गवाहों के बयानात मुकम्मल हो जाएंगे। फिर मुल्ज़मान को मौका दिया जाएगा, मुल्ज़मान के वकला को मौका दिया जाएगा कि अगर वो इस केस में अपने हक में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं तो वो गवाह पेश करें। उसके बाद फिर इस मुल्ज़मान के गवाह आएंगे अदालत में, उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, तो जिसके बाद फिर एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। उस पर फिर अदालत अपना फैसला लिखना शुरू करेगी। जबकि 2 रेफरेंसेस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अज़ीज़िया स्टील, उनमें अभी गवाहियां जारी हैं और इस्तगासा के जो गवाह हैं वो ज़िमनी रेफरेंसेस में अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसमें कल इस केस की समाअत होगी और कल भी इस्तगासा के गवाह ज़िमनी रेफरेंसेस में अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। जब ज़िमनी रेफरेंसेस के बयानात रिकॉर्ड कराने का सिलसिला मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर GIT के सरबराह वाजिद ज़िया अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और आखिर में नैब के तफ्तीशी अफसर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जिसके बाद मुल्ज़मान को मौका दिया जाएगा कि अगर वो अपने हक में गवाहियां लाना चाहते हैं तो वो गवाह पेश करें और वो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन आज जो है वो लंदन फ्लैट्स की समाअत है, इसमें नवाज शरीफ अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा कमरा अदालत में मौजूद हैं। अदालत फाजल जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं और इस केस में आज ये कहा जा सकता है कि ये सेकंड लास्ट यानी वाजिद ज़िया के बाद एक गवाह और आना है और फिर उसके बाद गवाहों का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और ये केस अपने मंत के अंजाम की तरफ जा रहा है। जी अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा कि एवन फील्ड रेफरेंस में कितनी समातें अब तक हो चुकी हैं? नवाज शरीफ और मरियम नवाज कितनी बार पेश हुए हैं एहतसाब अदालत में? जी एवन फील्ड रेफरेंस जो है इसकी जो समातें हैं वो इसमें आप कह सकते हैं कि ये रेफरेंस जो है ये अपने मंत के अंजाम की तरफ जा रहा है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस 3 से 4 पेशियों पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालत में नहीं आ सके, चूँकि बेगम कलसूम नवाज जो हैं उनकी अयादत के लिए नवाज शरीफ भी बैरून मुल्क जाते रहे और उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाती रही। इसलिए 3 से 4 पेशियां ऐसी थीं जिन पर दोनों बाप बेटी हाजिर नहीं हुए। उसके अलावा तमाम पेशियों पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ हाजिर होते रहे और ये केस जो है अपने मंत की अंजाम की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा जो समातें हुई हैं वो एवन फील्ड रेफरेंस की हुई हैं, क्योंकि इब्तदा में जब केस का आगाज हुआ तो उस वक्त ये तीनों रेफरेंसेज जो है वो एक ही दिन इनकी समाअत होती थी। तीनों रेफरेंसेज गो के ये अलग अलग केसेस हैं लेकिन समाअत एक ही रोज हुआ करती थी। जब गवाहियां मुकम्मल होने की तरफ जा रही थी और ज़िमनी रेफरेंसेज आना शुरू हुए तो फिर उसके बाद अदालत ने इन केसेस की समाअत एक रोज के वक्फे से शुरू कर दी। यानी अगर एक हफ्ते में पहले एक समाअत होती थी तो अब एक हफ्ते में दो रोज के समाअत रखी जा रही है। तो एवन फील्ड रेफरेंस जो है ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ठीक है आफ्ताब चौधरी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।